So beta, first of all, a very good morning to all of you. Last time we have started with the topic of graph theory. Under this topic, we have discussed many definitions like what do you mean by graph, directed graph, undirected, edges, vertex. These basic definitions are already discussed in the last class. And now we are going to proceed the next definition of this topic. So please note down the first definition. The first definition is undirected complete graph. Beta, this is our next definition, that is undirected complete graph. So first of all, please note down the definition. An undirected graph, an undirected complete graph, G is equals to V comma E. An undirected complete graph G is equals to V comma E of n vertices is a graph in which every vertex is connected to every other vertex. Each vertex is connected to every other vertex. That is an edge exists. Between every pair of distinct vertices. An edge exists between each pair of distinct vertices. It is denoted by Kn. So beta, this is our first definition, that is undirected complete graph. तो बेटा अनडायरेक्टेड कंप्लीट ग्राफ हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है जिसमें हर एक वर्टेक्स जो है इट इज कनेक्टेड विद एवरी अदर वर्टेक्स. मतलब अगर हमारे पास डिफरेंट वर्टिसेस एग्जिस्ट करती हैं तो डिस्टिंक्ट वर्टिसेस के पेयर के बीच में हमेशा एक एज जो है वो जरूर एग्जिस्ट करेगा. सो इट इज बेसिकली अ ग्राफ इन विच each and every vertex is connected with other vertex in a graph. मतलब हर एक vertex का किसी दूसरी vertex के साथ एक link होगा which is shown with the help of an edge. Edge हमारे पास क्या था? It is basically a line which connect the two different vertices. तो बेटा इसी के साथ लिखिए a complete graph with n vertices. A complete graph with n vertices has n into n minus 1 by 2 edges. अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी कंप्लीट ग्राफ में कितने एजेस एग्जिस्ट करने हैं? अगर किसी भी ग्राफ में हमारे पास टोटल वर्टिसेस n है तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एजेस व्हिच इज इक्वल्स टू n into n minus 1 by 2 where n this is the number of different vertices. So first of all, let us understand this definition with the help of an example. उसके बाद अगर किसी की क्वेरी होगी तो we shall discuss the same. So beta, first of all, suppose I am going to draw a complete graph K3. What is the meaning of K3? A graph which consists of 3 vertices. तो बेटा इस केस में हमारे पास 3 vertices है. Let us denote them by V1, V2 and V3. If the number of vertices this is equals to 3, then what will be number of edges? Number of edges this will be again equals to 3. तो हर एक वर्टेक्स को हमने दूसरी वर्टेक्स के साथ क्या करना है? कनेक्ट करना है. जैसे V1 is connected to V2, V1 is also connected to V3.
V1 V2 के साथ भी कनेक्ट है, V3 के साथ भी कनेक्ट है। सिमिलरली V2 V1 के साथ कनेक्ट है, V3 भी V1 के साथ कनेक्ट है, क्योंकि ये हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है। इन दिस केस डायरेक्शन इज नॉट मेंशन्ड। V2 और V3 ये भी आपस में कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंप्लीट ग्राफ फॉर K3. K3 मींस a complete graph which consists of 3 vertices. Any doubt in this definition? इसमें आपने एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि कंप्लीट ग्राफ में हर एक वर्टेक्स जो है वो दूसरी वर्टेक्स के साथ क्या होगी, कनेक्ट होगी। तो देख लीजिए बेटा, इस डेफिनेशन में किसी की कोई क्वेरी है? अगर क्लियर है तो लिख के भेज दो कि क्लियर है, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द अनदर। Excuse me, ma'am. Ma'am, we are not getting your voice. Hello. अभी चेक कीजिए बेटा, अभी ऑडिबल है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बेटा, ओके। ऐसा बहुत देख रहा था यार उसको ले जाओ हाँ
तो बेटा जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। बोर्ड तक देखती हैं अगर हो जाए। चलो ठीक है, देख लेते। ठीक है, थैंक यू। So beta, recently we have discussed the example of complete graph when there exist 5 vertices. तो अभी देखो जो 5 vertices वाला जो ग्राफ है, it is clear to all of you. Vertices हमारे पास 5 थी, it means कि there will be total 10 edges. So accordingly we have drawn a undirected complete graph for 5 vertices. In this graph V1 is connected to V2. V1 को मैंने V4 के साथ भी कनेक्ट किया है. Similarly V1 is connected with V3 and V5. It means vertex V1 is connected with all the different vertices. Similarly V2 को V3 के साथ कनेक्ट कर दिया, V2 is connected with V5. इसी तरह हमने हर एक वर्टेक्स को जितनी भी डिफरेंट वर्टिसेस एग्जिस्ट करती हैं सबके साथ कनेक्ट किया हुआ है. तो काइंडली चेक कि दिस एग्जांपल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. This is an example of undirected complete graph for 5 vertices. तो एक बार देख लीजिए, ये एग्जांपल सबको क्लियर है? यस मैम। ओके बेटा, ठीक है. यस मैम। ओके ठीक है रजय, ओके. तो बेटा अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ. आफ्टर दैट आई विल आल्सो प्रोवाइड इट सॉल्यूशन ऑन द बोर्ड. हाँ जी बेटा, आई हैव लॉन्च अ पोल फॉर ऑल ऑफ यू. अ क्वेश्चन इज गिवन टू ऑल ऑफ यू व्हिच इज वेरी सिमिलर टू दिस डेफिनेशन. क्वेश्चन देख लीजिए, सबको विजिबल है? मैम ये क्वेश्चन की ऑप्शन क्या है? बेटा ऑप्शन नहीं आएगी यहाँ पे, वो पिक नहीं ना करता, तो विदाउट ऑप्शन है. आपने कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करनी. यू हैव टू जस्ट ड्रॉ एन अनडायरेक्टेड कंप्लीट ग्राफ फॉर 4 वर्टिसेस. यस मैम. डोंट हैव अ लुक एट द ऑप्शन, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ एन Yes, ma'am, अनडायरेक्टेड done. कंप्लीट ग्राफ व्हेन देयर एग्जिस्ट 4 वर्टिसेस. आप उसको ड्रॉ डन कर मैम. Done, ma'am. देन आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑन बोर्ड आल्सो. मैम 6 एजेस है. 6 के लिए भी, हां 6 के लिए. Yeah, no स्क्वायर और उसकी दो डायगोनल बना दो अंदर. Yes, ma'am. स्क्वायर बना के उसमें हम क्या करेंगे? दो डायगोनल diagonals हमारे बन पास जाए. बीच में आ जाएंगे. तो दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट एग्जांपल. कुछ नहीं करना था. मैंने बोला कि यू हैव टू ड्रॉ एन अनडायरेक्टेड कंप्लीट ग्राफ फॉर 4 वर्टिसेस. तो आप 4 वर्टिसेस ड्रॉ कर लीजिए, V1, V2, V3 एंड V4. V1 को V2 से कनेक्ट कर दो, V3 से दिस वन, और बीच में एक आप क्या ले आओगे? क्रॉस ले आओगे. 4 4 माइनस 1/2 यही आपके पास आना था. यस मैम. ठीक है, वो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना. तो इस केस में हमारे पास टोटल कितनी एजेस आएंगी? दिस इज इक्वल्स टू 6. सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इसकी मैंने 2-3 एग्जांपल्स और नोट्स में एडअप की हुई हैं, आप उसको देख लीजिएगा. सिंपल बिल्कुल क्वेश्चन है. इसी तरह अगर हमारे पास 6 वर्टिसेस आ जाए तो उस केस में कितने एजेस एग्जिस्ट करेंगे? Suppose we have given 6 vertices, then what will be the number 15. of edges? 15 मैम. 15. 15। ठीक है बेटा. तो आप बता सकते हो कि 6 के लिए डायग्राम की शेप क्या होगी? जैसे मैंने अभी 4 के लिए किया था, यू हैव अ स्क्वायर. वेरी गुड. हेक्सागन. हेक्सागन होगी मैम. 3 के लिए ट्रायंगल, 4 के लिए स्क्वायर, 5 के लिए पेंटागन, 6 के लिए हेक्सागन. तो ये मैंने डिफरेंट एग्जांपल कुछ आपके नोट्स में दी हुई हैं, आप उसको एक बार देख लीजिएगा. In case you find any problem, then we simplify the same in your tutorial. 2 बजे ट्यूट लगेगा, उसको हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है. प्लीज नोट डाउन द डेफिनेशन. कनेक्टेड ग्राफ. नेक्स्ट इज connected graph. Beta, first of all, please note down the definition of connected graph. A graph is called connected. A graph is called connected if there is a path. If there is a path from any vertex U to V or vice versa. A graph is said to be connected
if there exists a path from any vertex u to v or v to u, whatever the condition is. तो बेटा कुछ नहीं आपने इसमें याद रखना, किसी भी ग्राफ को हम कनेक्टेड ग्राफ कब बोलते हैं, अगर एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स तक जाने के लिए हमारे पास कोई पाथ एग्जिस्ट करे तो उस ग्राफ को हम बोलते हैं कनेक्टेड ग्राफ। वो पाथ डायरेक्ट पाथ भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इसकी मैं आपको अभी एग्जांपल करवा दूंगी। डायग्राम मान लीजिए मैंने एक ली है हमारे पास, सपोज करो जे मैं इसकी एग्जांपल कंसीडर कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक वर्टेक्स रखी है ई। सपोज कर लीजिए हमारे पास एक डायग्राम है विच कंसिस्ट ऑफ ए बी सी डी एंड ई, 5 वर्टिसेस। तो मैंने जे वाला ग्राफ जो है वो एक ड्रॉ कर दिया और ए से लेके डी तक मैंने एक पाथ रखा है। अब सपोज कर लो मैं यहाँ पे आप लोगों को बोल रही हूँ कि व्हाट इज द पाथ फ्रॉम द वर्टेक्स ए टू ई। ए से लेके बी तक हम मूव कर सकते हैं, दिस इज नोन एज द डायरेक्ट पाथ। ए से लेके सी तक भी आप मूव कर सकते हो। देयर इज अ पाथ फ्रॉम ए टू डी, वो भी एग्जिस्ट करता है। क्या ए से लेके ई तक हम मूव कर सकते हैं? बेटा जहां पे पॉसिबिलिटी है, पहले अगर मैं ए से लेके डी तक आऊं और फिर डी से ई तक चली जाऊं, इसका मतलब है हमारे पास एक पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। और वो पाथ कौन सा है? ए से लेके डी, देन डी से लेके ई तक। तो बेटा इस तरह के पाथ को हम क्या बोलते हैं? कनेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। यहाँ पे एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स तक मूव करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई पाथ एग्जिस्ट करे। जैसे ए से लेके बी तक भी जा सकते हो, ए से लेके डी तक भी जा सकते हो, ए से लेके सी तक भी पॉसिबल है। तो ए से ई तक जाने का हमारे पास डायरेक्ट पाथ नहीं है। हम ए से बी चले जाएं फिर बी से ई चले जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। जहाँ हो सकता है मैंने पहले ए से डी तक ट्रेवल किया फिर डी से लेके ई कर लिया, ए से लेके सी तक चले जाओ फिर सी से डी फिर डी से ई। मतलब डिफरेंट डिफरेंट पाथ हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं जिससे हम एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स तक मूव कर सकते हैं। तो बेटा क्या ये एग्जांपल क्लियर है? देन आई विल एक्सप्लेन दिस। Is this example clear to all of you or there is a need to explain it again? Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा। Yes, ma'am. मैम ये जरूरी है कि हमने शॉर्टेस्ट पाथ ही चूज करना है? नहीं, मैंने बोला तो है बेटा, मैंने बोला कि आप ए से डी, डी से ई भी, मैंने यहाँ पे इतना बोला कि देयर एग्जिस्ट अ पाथ, एक पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए। वो शॉर्टेस्ट है कि लेंथी है उसकी हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, वो हम जब एल्गोरिदम करेंगे वो अलग चीज आएगी आपके पास। यहाँ पे बस इतनी सी कंडीशन है कि ग्राफ कनेक्टेड कब होगा? अगर यहाँ पे एक पाथ एग्जिस्ट करेगा। वो पाथ शॉर्टेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, उसके बारे में यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके बेटा। तो बेटा इस केस में मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल है कि हम एक वर्टेक्स से किसी भी दूसरी वर्टेक्स तक मूव कर सकते थे। अब यहाँ पे बस एक ही कंडीशन थे कि आप बोल सकते थे कि ए से लेके ई तक नहीं आ सकते। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि हमारे पास कंडीशन है हम पहले ए से बी चले जाएं फिर बी से ई। मतलब पाथ तो एग्जिस्ट करता है ना, वो डायरेक्ट पाथ नहीं है जी, अलग बात है। तो अगर एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स तक जाने के लिए हमारे पास पाथ एग्जिस्ट करे तो उस तरह के ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? कनेक्टेड ग्राफ। तो बेटा यहाँ पे लिख लीजिए एक्सप्लेनेशन में, इन दिस ग्राफ इट इज पॉसिबल, in this graph it is possible to travel from one vertex to any other vertex. In this graph it is possible to move from one vertex to any other vertex. For example, one can traverse, लिख लो, for example, one can move from a vertex A to E. One can move from a vertex A to E by using path, कोई भी पाथ यूज कर लो, by using path A से लेके B फिर B से लेके E. It's your choice कि which path you want to follow. तो बेटा this was the definition and example of connected graph. Kindly note down this definition and after that we shall start with the definition of disconnected graph.
लगा देना, लीड ना छोटी है। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है डिसकनेक्टेड ग्राफ की। वॉइस की ऑडिबिलिटी की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही अभी किसी को? नो मैम। ठीक है, डन। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है, प्लीज नोट डाउन, डिसकनेक्टेड ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज नोट डाउन द डेफिनेशन एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन द एग्जांपल। सेम ही है जो हमने अभी किया था, बस वहां पे पाथ एग्जिस्ट करता था, यहाँ पे कोई ऐसी एक वर्टेक्स एग्जिस्ट कर जाएगी जिसके लिए पाथ की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। बस दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड। तो डेफिनेशन लिखिए, अ ग्राफ इज कॉल्ड डिसकनेक्टेड, a graph is called disconnected if there is no path, between any of its two vertices। अगर किसी भी दो वर्टिसेस के बीच में पाथ एग्जिस्ट नहीं करता तो दैट ग्राफ विल बिकम अ डिसकनेक्टेड ग्राफ। A graph is called disconnected if there doesn't exist a graph between any two of its vertices। For example, मान लीजिए मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ एक ग्राफ, A, B, C, D, E और F। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया। अब यहाँ पे देखो कि अगर मैं ट्रैवल करना चाहूँ A से लेके E तक या A से लेके F तक, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। A से लेके E तक जाने के लिए हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है क्योंकि ये डिसकनेक्टेड है। A और E के बीच में कोई भी और पाथ जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कोई भी एक ऐसा एज एग्जिस्ट नहीं करता जो A को E के साथ ज्वाइन करे। अगर C और E को मैं ज्वाइन कर दूं तो पहले A से लेके D तक आओ, D से लेके C तक, फिर C से लेके E तक आप जा सकते हो, मतलब फिर एक पाथ एग्जिस्ट करता है। बट क्योंकि C और E आपस में कनेक्टेड नहीं है तो दिस विल बिकम द एग्जांपल ऑफ डिसकनेक्टेड ग्राफ। डिसकनेक्टेड क्यों बनेगा? बिकॉज इन दिस केस इट इज नॉट पॉसिबल टू मूव फ्रॉम A टू E। D से लेके E तक भी नहीं मूव कर सकते आप, हमारे पास एक पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो बेटा देख लो, दिस एग्जांपल इज क्लियर? यस मैम। सिंपल है, कोई भी ग्राफ डिसकनेक्टेड कब बनता है? अगर कोई भी दो वर्टिसेस के बीच में एक पाथ एग्जिस्ट ना करें। तो बेटा इसकी एग्जांपल एक्सप्लेनेशन लिखिए। इन दिस एग्जांपल या इन दिस ग्राफ, ट्रेवलिंग फ्रॉम वर्टेक्स ए, कुछ भी लिख लेना, E तक या F तक। इन दिस ग्राफ ट्रेवलिंग फ्रॉम वर्टेक्स A to vertex F is not possible। In this graph, traveling from vertex A to vertex F is impossible because there is no path, between them directly or indirectly। Because there doesn't exist a path between them directly or indirectly। ये डिसकनेक्टेड क्यों है? क्योंकि A और F के बीच में कोई भी पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ना ही डायरेक्ट और ना ही इनडायरेक्टली। तो इसलिए दिस विल बिकम द एग्जांपल ऑफ अ डिसकनेक्टेड ग्राफ। तो बेटा एक बार देख लो कि दोनों की दोनों डेफिनेशन सबको क्लियर है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बेटा डेफिनेशन बनती है सब ग्राफ की। है किसी को आइडिया बेटा सब ग्राफ क्या होता है? वैसे तो नाम से कुछ कुछ इसका आइडिया आपको मिल ही जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय अ सब ग्राफ? मैम लाइक ट्री। हम जब एक ग्राफ की सारी एजेस किसी दूसरे ग्राफ में एग्जिस्ट करती हैं
मैम लाइक जैसे में एक सबसेट होता है दूसरे का। वेरी गुड। लाइक ट्री, बाइनरी ट्री जैसे। ओके, जैसे ट्री की आप स्लो एग्जांपल दे रहे हो, ठीक है, ट्री की एग्जांपल हमने ट्री में भी डिस्कस करनी है, ठीक है बेटा, वे भी ठीक है। सब ग्राफ नाम से ही क्लियर कि ग्राफ में से कुछ निकला हुआ होता है। जैसे सबसेट क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ सेट, तो व्हाट इज अ सब ग्राफ, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्राफ। ग्राफ में से ही जब आप कुछ पिक कर लेते हो, जैसे होता है ना, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेट, व्हेन वी कंसीडर सम एलिमेंट ऑफ अ सेट देन इट विल बिकम अ सबसेट। सेट के कुछ एलिमेंट उठाओ तो सबसेट बन जाता है। इसी तरह अगर हम ग्राफ में से कुछ वर्टिसेस और एजेस को पिक करें और वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सब ग्राफ बन जाएगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए, बिल्कुल सिंपल है। और एक ग्राफ के बहुत से सब ग्राफ एग्जिस्ट कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, मैं उसके 2 ही सब ग्राफ लिख रही हूँ, आप उसके जितने पॉसिबल है उतने सब ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि एक ग्राफ के बहुत से सब ग्राफ हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास कोई 6 डायग्राम की मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, हो सकता है मैंने ए बी और सी को लेके ग्राफ ड्रॉ किया, आप ए बी डी को लेके कर सकते हो, बी सी डी ई को लेके कर सकते हो। मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हमारे पास होती हैं जिसमें एक ग्राफ के सब ग्राफ एग्जिस्ट करेंगे। तो पहले इसकी बेटा डेफिनेशन लिखिए, देन आई विल आस्क फॉर द एग्जांपल आल्सो। अ सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ G, a subgraph of a graph G is a graph G dash, is a graph G dash which is equals to V dash comma E dash, where Ma'am, please repeat it. बेटा यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, अगेन आई एम पार्टिंग द डेफिनेशन। अ सबग्राफ ऑफ अ ग्राफ G, अ सबग्राफ ऑफ अ ग्राफ G, मान लो हमारे पास एक ग्राफ G है जिसकी वर्टिसेस को मैंने V के साथ डिनोट किया, एजेस को E के साथ डिनोट किया। तो जो उसका सब ग्राफ है इट इज डिनोटेड बाय G डैश, उसमें जो वर्टिसेस आएंगे दैट विल बी डिनोटेड बाय V डैश, और एजेस को डिनोट करेंगे E डैश के साथ। तो यही मैंने यहाँ पे लिखवाया है, अ सबग्राफ ऑफ ग्राफ G is a graph G dash, is a graph G dash which is equals to E dash comma V dash। अगर किसी को जो विजिबल नहीं है तो मैंने ये लिखा हुआ बेटा, G dash is equals to V dash comma E dash, where V dash is a subset of V and E dash is a subset of E। जो सब ग्राफ की वर्टिसेस हैं वो किसमें से आएंगी, जो ग्राफ की वर्टिसेस थी, और सब ग्राफ के जितने भी एजेस है वो हमने कौन से लेने हैं, जो ग्राफ में एजेस है। ग्राफ के अलावा आप अपनी मर्जी से कोई नया एज ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। एंड ईच एज ऑफ जी डैश, जो मैंने अभी बोला वही लिखवा रही हूँ अभी, एंड ईच एज ऑफ जी डैश हैज सेम वर्टिसेस, and each edge of G dash has same vertices as in G, as in graph G। तो बेटा सबसे पहले देखो क्या मैंने लिखवाया है। अगर मेरे पास कोई ग्राफ है, उसकी जो वर्टिसेस होंगी दे विल बी डिनोटेड बाय V एंड एज विल बी डिनोटेड बाय E। अब जो सब ग्राफ है वो इसी में से आएगा, तो उसको मैंने डिनोट कर लिया G डैश के साथ। उसमें जो वर्टिसेस आएंगे दे विल बी डिनोटेड बाय V डैश एंड एजेस विल बी डिनोटेड बाय E डैश। अब इतना पता है कि सब ग्राफ आप ग्राफ में से निकाल रहे हो, इसका मतलब है जो सब ग्राफ की वर्टिसेस होंगी दिस इज अ सबसेट ऑफ V, और जो एजेस होंगे दिस विल बी अ सबसेट ऑफ E। V dash are the vertices of subgraph and V are the vertices of graph। और एक मेन कंडीशन क्या होगी कि जितने भी एज आप सब ग्राफ में ड्रॉ कर रहे हो दे हैव द सेम वर्टिसेस एज इन G। मतलब जो ग्राफ G में एजेस हैं वही एज आप सब ग्राफ में ड्रॉ करोगे, उसके अलावा नहीं कोई कर सकती। जैसे मान लो मैं इसकी एक एग्जांपल लेती हूँ, अगर किसी का कोई डाउट होगा तो इसके साथ क्लियर हो जाएगा। इसको मैं ऊपर ही ड्रॉ कर देती हूँ ताकि सबको विजिबल हो जाए। आपने बस इतना सा याद रखना है कि सब ग्राफ इज अ पार्ट ऑफ ग्राफ, उसी का एक पार्ट होता है, उसी का एक सबसेट होता है। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया बेटा, ये हमारे पास बेटा एक ग्राफ है और इसकी वर्टिसेस को मैं डिनोट कर रही हूँ A
बी, सी, डी, ई एंड एफ के साथ। जे मैंने एक ग्राफ ले लिया और इसके बीच में जे वाले एजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसकी मैंने कोई लेबलिंग नहीं की। ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ, दीज आर टोटल 6 वर्टिसेस। तो जे मैंने एक ग्राफ ले लिया, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द ग्राफ जी। अब मैंने इसके सब ग्राफ ड्रॉ करने हैं, एक सब ग्राफ ड्रॉ कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, आपकी चॉइस है। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैंने 3 ही वर्टिसेस को लिया, ए, बी और सी को। ए और बी के बीच में एक एज एग्जिस्ट कर रहा है, बी और सी के बीच में एक एज एग्जिस्ट कर रहा है, ए और सी के बीच में एक एज एग्जिस्ट कर रहा है। उसने बोला था कि एजेस मैंने जी डैश में वही लेने हैं जो ग्राफ में एग्जिस्ट करते थे। तो बेटा दिस इज अ सब ग्राफ ऑफ ग्राफ जी। मतलब इसी का जब आप एक पार्ट उठाते हो ना, इसी में से कुछ वर्टिसेस को लेके जो नया ग्राफ बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं सब ग्राफ। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सब ग्राफ बन जाएगा। और इसका सब ग्राफ बना सकते हो आप, मान लीजिए मैंने जे वाला ले लिया जो रेक्टेंगल है बीच में, तो क्या आएगा, ए, सी, डी, एफ। ए और सी के बीच में एज है, डी और एफ के बीच में, सी, डी और ए, एफ के बीच में हमारे पास एजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बेटा दीज आर दी सब ग्राफ ऑफ दी गिवन ग्राफ। इस तरह हम इसके सब ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या ड्रॉ कर सकते हो, कोई बता सकते हो, एनी अदर सब ग्राफ फॉर द गिवन ग्राफ? ए बी ई एफ। ए, बी, ई, एफ, वेरी गुड। एफ, डी, ई, चाहे जे वाला ड्रॉ कर लो। बी, सी, डी, ई, चाहे जे वाला। मतलब काफी इसके सब ग्राफ आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। तो बेटा ये सबको क्लियर है, व्हाट इज द सब ग्राफ? Yes, ma'am. Subgraph is basically a part of graph which consists of the vertices from a graph, and it will consist only those edges which already exist in the graph. वही एज आएंगे जो ग्राफ में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ये ना हो कि मैं यहाँ से ए और डी के बीच में एज ड्रॉ कर दूं, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए और डी के बीच में तो यहाँ पे कोई एज ही एग्जिस्ट नहीं करता। बस इस चीज का आपने ध्यान रखना है और कुछ नहीं इसमें नहीं, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद आएगा इसके बाद हमारे पास एक कनेक्टेड कंपोनेंट की डेफिनेशन है, वो भी सिमिलर है सब ग्राफ से ही। उसकी भी एग्जांपल मैंने दी है, वो एक बार देख लीजिएगा आप लोग। अगर प्रॉब्लम आएगी फिर हम डिस्कस कर लेंगे इसको क्लास में। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, स्पैनिंग सब ग्राफ। ये इंपॉर्टेंट है, स्पैनिंग सब ग्राफ है। सारी डेफिनेशन सिंपल, बट ये टॉपिक पूरे का पूरा थ्योरेटिकल है, तो दैट्स व्हाई आई एम कोटिंग एग्जांपल विद ऑल द डेफिनेशंस। पेपर में आप लोगों ने भी डेफिनेशन के साथ एग्जांपल देने हैं, नहीं तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। अकेली थ्योरी का कुछ नंबर नहीं मिलना बेटा। तो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कि स्पैनिंग सब ग्राफ क्या होता है। सब ग्राफ का तो सबको पता चल गया, रिसेंटली वी हैव डिस्कस्ड दिस डेफिनेशन। तो स्पैनिंग का क्या मतलब होता है, स्पैनिंग सब ग्राफ क्या होगा, डेफिनेशन नोट कीजिए। अ ग्राफ G1, a graph G1 having vertices V1 and edges E1. A graph G1 is called spanning subgraph. Spanning subgraph of a graph G having the vertex at V and edges E. जब मैं बोलूंगी ना कि G is the graph with vertex E and edge E, आपने इसको ऐसे लिखना है, G is equals to V comma. A graph G1 is called spanning subgraph of a graph G if G1 contain all the vertices of graph G, but E, this is not equals to E1. स्पैनिंग सब ग्राफ में क्या होता है कि अगर कोई ग्राफ जी है, उसमें से आपने स्पैनिंग सब ग्राफ बनाना है, तो स्पैनिंग सब ग्राफ में सारी की सारी वर्टिसेस आएंगी जो ग्राफ जी में एग्जिस्ट करती हैं। बट व्हाट इज द कंडीशन, देयर एजेस विल नॉट बी इक्वल। उनके एजेस इक्वल नहीं होंगे, बस इतनी से डिस्टिंक्शन है। जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल की थी उसी को लेके चलते हैं। अभी मैंने आपको ये एग्जांपल करवाई थी, मान लीजिए हमारे पास ये है
ज्यादा एग्जांपल्स जरूरत नहीं है याद रखने की, हम एक दो एग्जांपल के साथ ही सारा टॉपिक कवर कर सकते हैं। ए बी सी डी ई एफ, मेरे पास अभी मैंने बताया था कि ये हमारे पास मान लीजिए एक ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैंने इसका स्पैनिंग सब ग्राफ बनाना है। तो स्पैनिंग सब ग्राफ में क्या होता है कि जो वर्टिसेस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो वर्टिसेस क्या थी, ए बी सी, उसके बाद थी डी, उसके बाद है ई और उसके बाद है एफ। वर्टिसेस को नहीं मैंने छेड़ना, वर्टिसेस सेम ही आएंगी। अब एज आपकी चॉइस है आपने कौन कौन से ड्रॉ करने हैं, क्योंकि ई और E1 आपस में इक्वल नहीं हो रही। हो सकता है मैंने इतने ही एजेस ड्रॉ किए हैं, हो सकता है मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं या इसको इसके साथ ज्वाइन कर दूं। तो ये आपकी चॉइस है कि आपने कौन से एजेस को इसमें ज्वाइन करना है। There is no condition on edges, but there is only a single condition that all the vertices must be equal. Vertices को आप लेके चलोगे, edges के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, बट ये है कि आपने अपनी तरफ से कोई नया एज नहीं इसमें ड्रॉ करना। आप क्या करोगे कि जितने भी इसमें एजेस हैं, आप चाहे उनमें से किसी भी एजेस को छोड़ दो, वो आपकी चॉइस है, क्योंकि ई और E1 कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो देख लीजिए बेटा, स्पैनिंग सब ग्राफ की डेफिनेशन क्लियर है विद एग्जांपल। मैम हाँ जी बेटा, मैम ये स्पैनिंग ग्राफ में रिपीट करना। बेटा स्पैनिंग सब ग्राफ में हमारे पास क्या होता है कि जो स्पैनिंग सब ग्राफ है, मान लो आपके पास कोई ग्राफ जी है, जैसे ये मेरे पास एक ग्राफ जी एग्जिस्ट कर रहा है, इसके लिए मैंने एक स्पैनिंग सब ग्राफ ड्रॉ करना है जिसको मैं G1 के साथ डिनोट करूंगी। तो क्या कंडीशन है कि जितनी भी वर्टिसेस ग्राफ जी में एग्जिस्ट करती हैं वो सारी की सारी स्पैनिंग ग्राफ में एग्जिस्ट करनी चाहिए। जैसे इसमें टोटल कितनी वर्टिसेस हैं, 6, तो 6 की 6 वर्टिसेस यहाँ पे आएंगी। सेकंड कंडीशन, उनके एजेस आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे जितने इसके बीच में एज एग्जिस्ट करते हैं, कुछ इसमें से मिस कर दो, क्योंकि ई और E1 इक्वल नहीं होने चाहिए, बट वर्टिसेस इक्वल होनी चाहिए। दिस इज द कंडीशन। In spanning subgraph, vertices will be equals to that of the graph, but edges they are not equal. अभी क्लियर है बेटा? जी मैम जी। ठीक है बेटा। Yes. तो ये हमारे पास स्पैनिंग सब ग्राफ था, कुछ नहीं है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि ऑल द वर्टिसेस इन स्पैनिंग सब ग्राफ विल बी इक्वल्स टू ग्राफ जी, बट देयर एजेस विल नॉट बी इक्वल। बस इतना सा आपने यहाँ पे याद रखना। तो एग्जाम्पल आप इसमें से कुछ भी बना सकते हो, जैसे मैंने ए और बी को ज्वाइन किया, आप चाहे इसको छोड़ दो, ए और एफ को कर दो। सो इट्स योर चॉइस कि क्या आपने एग्जाम्पल ड्रॉ करनी है। तो इफ डेफिनेशन इज क्लियर टू यू, सो यू कैन कंस्ट्रक्ट द एग्जाम्पल अकॉर्डिंगली। डेफिनेशन क्लियर है तो एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से उसकी कुछ भी बना सकते हो। ओके, अब मुझे एक चीज बताइए कि लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ। किया था क्लास में हाउ टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ? Yes, ma'am. ओके, कौन बताएगा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जस्ट रेज योर हैंड। डेफिनेशन नहीं बतानी, अपनी हैंड रेज करो, फिर मैं देखती हूँ कितनों को आता है। तीन बच्चों को ही आता है बस, 4 5 out of 56 students there are only 6 students who are willing to respond. अब धीरे धीरे नंबर इंक्रीज हो रहा है, वो हो रहा है ना कि कॉपी खुल रही है तो नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। चलो, रोल नंबर 120 अंगद, बेटा बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ? मैम जो ग्राफ बना होता है उसके जो ऑपोजिट, जैसे अगर ए टू बी जा रहा है, अगर 4 उसमें एजिस, तो हम क्या कर देंगे कि ए टू सी एक डायगोनली हम उसको कर देंगे। ओके, और इसी तरह और भी एजिस हम ड्रॉ करेंगे कि वो कॉम्प्लीमेंट बन जाए मैम। वेरी गुड बेटा। जैसे हम सेट्स में कॉम्प्लीमेंट की बात करें हैं, तो इट इज समवेयर रिलेटेड टू दैट डेफिनेशन। वेरी गुड बेटा। हाँ जी, 162 इंद्रजीत, Yes, ma'am. बेटा डू यू वांट टू ऐड समथिंग इन दिस डेफिनेशन? Ma'am, if we have edges, if we have edge in two vertices, then complement of complement के अंदर मैम वो edges
नहीं होंगी अगर वो दो very वर्टिसेस के अंदर ठीक। पहले की प्रेजेंट। तो अभी बेटा दोनों बच्चों ने बिल्कुल ठीक रिस्पॉन्ड किया है कि अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ है, जी मान लो कोई ग्राफ है, उसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो दैट इज डिनोटेड बाय जी बार। तो जी बार में हमारे पास वो एजेस आएंगे जो ग्राफ जी में एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब जितने वर्टिसेस ग्राफ जी में कनेक्टेड हैं उसके अलावा हमने नए वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट करना है। जो वहां पे ऑलरेडी एज एग्जिस्ट करते हैं दे विल नॉट कम इन कॉम्प्लीमेंट, वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएंगे। उसके अलावा जो और पॉसिबिलिटीज हैं वो हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ। लेकिन अब हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब ग्राफ। तो बेटा ये डिफरेंट है। लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ, बट नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब ग्राफ। तो कोई थोड़ा सा हिंट दे सकता है कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? आप स्टेप्स बता दो कि क्या स्टेप्स आएंगे। आफ्टर दैट आई विल डिक्टेट द डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब ग्राफ, तो आई थिंक नाम से ही क्लियर है कि व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन दिस डेफिनेशन। मैम सब ग्राफ को छोड़कर बाकी सारा ग्राफ हमने ड्रॉ करना होगा। हाँ, मतलब हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है सब ग्राफ का। तो पहले मुझे ना कोई ग्राफ तो गिवन होगा, हम क्या करेंगे उस ग्राफ में से कोई ना कोई सब ग्राफ बना लेंगे। अब सब ग्राफ आप अपनी चॉइस का बना सकते हो, आपने क्या बनाना है। अब हमने सब ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सब ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब है कि जो एजेस सब ग्राफ में एग्जिस्ट करते हैं उनको हमने कॉम्प्लीमेंट में ज्वाइन नहीं करना। उसके अलावा जो जो वर्ड्स कनेक्ट हो सकती है उसको हम कॉम्प्लीमेंट में कनेक्ट करेंगे। So in this case we have to find the complement of subgraph instead of finding the complement of a graph. तो इसमें एक स्टेप बेटा इंक्रीज हो जाएगा। फर्स्टली हमें ग्राफ कंसीडर करना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी हैव टू डिडक्ट अ सब ग्राफ, उसमें से एक सब ग्राफ निकालोगे एंड इन थर्ड स्टेप वी हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सब ग्राफ। तो फिर उसके बाद क्या करोगे, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। तो वेरी इजी डेफिनेशन है, प्लीज नोट डाउन। तो बेटा सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखिए। Let G is a graph. Let G be a graph, and S is a subgraph of G, and S be a subgraph of graph G. Then, जैसे लिख लो, if edge set of S, if the edge set of S का मतलब है सब ग्राफ, if the edge set of subgraph S is deleted from the graph G, is deleted from graph G, then the graph obtained is called, then the new graph obtained is called complement of subgraph. Then graph so obtained is called complement of subgraph, and it is denoted by S bar. Complement को हम बार के साथ डिनोट करते हैं। It is already discussed in the definition of complement of a graph. बेटा वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले हमारे पास एक ग्राफ होगा, ग्राफ में से मैंने एक सब ग्राफ बनाना है। उसके बाद क्या करना है कि जो सब ग्राफ में एजेस कनेक्ट हैं उसको छोड़ दो, उसको डिलीट कर दो। बाकी जो भी एजेस ग्राफ में बचे उनको आपस में ज्वाइन कर दो, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब ग्राफ। वो हमारे पास सब ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसकी हम एक डेफिनेशन तो डिस्कस की है, एक डायग्राम के साथ इसको कोट कर लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए मेरे पास एक ग्राफ है, दिस वन। मैंने इसकी लेबलिंग वगैरह नहीं की क्योंकि यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं डायरेक्टेड है अनडायरेक्टेड, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने सिंपल जे वाला ग्राफ ले लिया एक। वी हैव कंसीडर्ड अ ग्राफ हियर। लिखना है तो लिख लेना, आपकी चॉइस है। मान लो जे V1 V2 V3 4 है, नहीं लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने इसमें से एक सब ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मान लो मैं जे सब ग्राफ ले रही हूँ। V1 V2 V3 V4, जे भी तो इसको सब ग्राफ बनेगा ना। सब ग्राफ क्यों है, क्योंकि मैंने V1 V2 एज को छोड़ दिया हुआ है, V1 V3 को छोड़ दिया, V2 V3 को छोड़ दिया। मैंने केवल इतना सा इसका पोर्शन ले लिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये एक सब ग्राफ आ गया। अब मुझे ये देखो बेटा, ये ग्राफ है, दिस इज अ सब ग्राफ
अब मुझे सब ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो क्या बनेगा? V1 वैसे ही रहेगी, V2 वैसे ही रहेगा, V3 वैसे ही रहेगा और V4 वैसे ही रहेगा। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ग्राफ में जो वर्टिसेस इसमें आ रही हैं उसको छोड़ दो, तो ये वाली छोड़ दो, बाकी क्या बचेंगी? V1 को V2 से कनेक्ट कर दो, V2 को V3 के साथ और V2 को यहाँ से इसके साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब ग्राफ। देखो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? V1 को V2 से कनेक्ट करते हो, V1 को V3 से और V2 को V3 के साथ। So this is the complement of the subgraph S which is obtained from the graph G. अब देखो ये एग्जांपल सबको क्लियर है? आप अपनी मर्जी से कोई भी डायग्राम लेके कुछ भी उसका सबग्राफ निकाल सकते हो। बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन that we are going to start is order and size of a graph. जी आपने खुद ही कर लेनी है, इतनी इजी डेफिनेशन है, मैंने बस डेफिनेशन बतानी है। I will give you a diagram and you have to tell कि what will be its order and size. तो be attentive now, बिल्कुल simple है, everybody can give the answer. तो बेटा first of all please note down the definition. Let G is a graph. Let G is a graph. The number of vertices in a graph. The number of vertices in a graph is called. The number of vertices in a graph is called order of G. Is called order of G, and number of edges is called size of G. And number of edges of a graph is called its size. मतलब किसी भी ग्राफ में जो vertices होंगी that is called its order, and the number of edges it will be denoted by size. If you want to find the order of a graph, then calculate the number of vertices, and to calculate the size of a graph, just you have to remember ki what will be the number of edges in that particular graph. For example, मान लो मैं इसको कंसीडर करती हूँ बेटा, मान लीजिए हमारे पास एक जे वाला ग्राफ जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है और मैंने बोल दिया जी है A, B, C and D. तो सबसे पहले बताओ कि what will be its order? Order किसके इक्वल आएगा? 4 के. And what will be its size? 7. Very good. ऑर्डर का मतलब था Yes, नंबर ma'am. ऑफ वर्टिसेस, तो कितनी वर्टिसेस हैं? A, B, C and D. साइज का मतलब है एजेस, तो कौन कौन सी एजेस हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल 7 एजेस हैं. इट मीन साइज ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल्स टू 7. सिंपल सी बेटा डेफिनेशन थी, तो आई डोंट थिंक इसमें किसी की कोई क्वेरी हो. अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या बनती है डेफिनेशन. करें बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन. यस मैम. नेक्स्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, इसको ध्यान से देख लेना, ये पेपर में आ भी सकती है. डिफाइन आइसोमॉर्फिक ग्राफ, ये आ सकती है पेपर में, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. आइसो का मतलब होता है सेम, आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स. अब हमने ये बताने कि क्या होते हैं आइसोमॉर्फिक ग्राफ. लिखिए इसकी डेफिनेशन. Two graphs G1 and G2. Two graphs G1 and G2 are called isomorphic. Two graphs G1 and G2 are called isomorphic if there is a one-to-one correspondence. If there is one-to-one correspondence
between their vertices, if there is 1-to-1 correspondence between their vertices and edges. Two graphs G1 and G2 are called isomorphic graph if there is 1-to-1 correspondence between their vertices and between their edges and between their edges. अब इसका क्या मतलब है कि वर्टिसेस और एजेस के बीच में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए. दैट इज द ग्राफ्स हैव आइडेंटिकल रिप्रेजेंटेशन. इसका मतलब है दैट इज द ग्राफ्स हैव आइडेंटिकल रिप्रेजेंटेशन except graph have identical representation except that the vertices may have different labels. Except that the vertices must have the different labels. मतलब जो वर्टिसेस हैं उनकी लेबलिंग हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा इसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए. दोबारा से एक बार डेफिनेशन सुनो, देन आई विल एक्सप्लेन द सेवन डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ आल्सो. उसने बोला कि दो ग्राफ G1 और G2 आइसोमॉर्फिक कब होते हैं? अगर उनके बीच 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करती है. 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस किसके बीच में एग्जिस्ट करनी चाहिए? वर्टिसेस के बीच में और एजेस के बीच में. अब उसने क्या बोला है कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो उनकी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल आइडेंटिकल होगी. मतलब उनकी डिग्री में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. हमारे पास जितनी वर्टिसेस की, मान लो हमारे पास एक ग्राफ G1 है, G1 में हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री 4 है, तो G2 ग्राफ में भी 3 वर्टिसेस ऐसी एग्जिस्ट करेंगी जिनकी डिग्री 4 होगी. हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो G1 ग्राफ है उसमें मान लो वर्टेक्स V1, V2 और V3 की डिग्री 4 थी, लेकिन G2 ग्राफ में A, B और C की डिग्री 4 आ जाएगी. तो यही उसने यहाँ पे बोला है कि जो वर्टिसेस की लेबलिंग है इट मे बी डिफरेंट, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट देयर डिग्री तो दे मस्ट हैव द आइडेंटिकल रिप्रेजेंटेशन. उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. डेफिनेशन थोड़ी बहुत क्लियर है आप लोगों को? यस मैम. जो मैंने बेटा आपको डायग्राम करवानी है ना, अभी मैंने उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हुआ है. बिफोर ड्राइंग द ग्राफ अगेन आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट कि आइसोमॉर्फिक ग्राफ में जो G1 और G2 होता है, दोनों में जो वर्टिसेस होती हैं उनकी लेबलिंग अलग अलग होगी. जैसे मान लो 5 वर्टिसेस हैं G1 ग्राफ में, उनको मैंने डिनोट किया V1, V2, V3, V4 और V5 के साथ. बट इन ग्राफ G2 नाउ दीज वर्टिसेस विल बी डिनोटेड बाय PQRST ABCDE. मतलब नेमिंग उनकी अलग हो जाएगी. जब V1 डैश V2 डैश आ जाएगा लेबलिंग अलग कर दोगे, बट रेस्ट ऑफ दी प्रेजेंटेशन विल बी आइडेंटिकल. बाकी रिप्रेजेंटेशन सेम रहेगी. मतलब अगर V1 3 वर्टिसेस की डिग्री 5 एग्जिस्ट करती है, तो इसमें भी ऐसी 3 वर्टिसेस होनी ही चाहिए जिनकी डिग्री 5 हो. इसमें 2 वर्टिसेस है जिनकी डिग्री 2 है, तो इसमें भी ऐसी कोई 2 वर्टिसेस जरूर एग्जिस्ट करेंगे जिनकी डिग्री 2 आनी चाहिए. मतलब डिग्री के साथ कोई भी चेंज नहीं होगा. द चेंज विल ओनली ऑफ द लेबलिंग. तो सबसे पहले कीजिए ड्रॉ ग्राफ, देन आई विल आस्क कि क्या क्या इसकी डिग्रीज है, क्योंकि डिग्री हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है. साथ में डिग्री का जो आपके पास कॉन्सेप्ट था उसको भी थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लेना, फिर मैं आप लोगों से करती हूँ इसका क्वेश्चन. तो बेटा साथ ही साथ काइंडली ड्रॉ दिस डायग्राम, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको विद एग्जांपल. जैसे यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया A, B, C, D and E. दिस इज अवर G1 ग्राफ. एंड इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड ग्राफ, तो ये मेरे पास बन रहा है दिस वन. और इसकी मैंने लेबलिंग किसके साथ की है? V1, V2, V3, V4 एंड V5. ये मैंने सबसे पहले 2 ग्राफ ड्रॉ किए हैं. फर्स्ट ग्राफ इज सेड टू बी G1 एंड सेकंड इज डिनोटेड बाय G2. बेटा डिग्री हमारे पास क्या थी? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था
how can we find the degree of a graph? मैम डिग्री हर एक वर्टेक्स की अलग होती है, हाँ। जितनी एजेस Number उस of- वर्टेक्स के साथ इंसिडेंट कर A रही हैं। particular vertex is connected to how many another vertices? Yes, Yes, ma'am. Edges exist करते हैं दो vertices के बीच में, that will be set to the degree of that particular vertex. तो बेटा सबसे पहले तो मैंने बोला था कि number of vertices must be same. A, B, C, D, E. There exist 5 vertices in graph G and 5 vertices in graph G2. दोनों में number of vertices same है. What is the distinction? Labeling अलग अलग है. दोनों ग्राफ विजिबल है आपको? नो मैम, आप में से किसी ने भी नहीं बोला. अब विजिबल है दोनों ग्राफ? Yes, ma'am. Okay बेटा. तो बेटा in both the graph in G1 and G2 the number of vertices are same, which is equals to 5, but their labeling is different. In the first graph the vertices are denoted by A, B, C, D, and in the second graph it is denoted by V1, V2, V3 and so on. अब हमने क्या चेक करना है? Now we have to check about the degree of these vertices. जैसे मान लो अब आप बताइए कि इस ग्राफ में कितने वर्टिसेस है जिनकी डिग्री इक्वल है. फिर आप देखो कि इस ग्राफ में कितनी वर्टिसेस है जिनकी डिग्री इक्वल आ रही है. अगर वो सेम आ गए, नंबर ऑफ वर्टिसेस इक्वल है जिनकी डिग्री सेम है, तो G1 एंड G2 आर सेड टू बी दी आइसोमॉर्फिक ग्राफ. जैसे सबसे पहले तो आप यही बताइए, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए? 3. ए बी Three. से कनेक्टेड है, डी से कनेक्टेड है, ई 3 से. वेरी गुड. व्हाट इज द डिग्री ऑफ वर्टेक्स बी? 2 2. डिग्री ऑफ सी? बाकी सभी की 2 है बाकी सभी की 2 है, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ. मैम. डी की 3 है, डी की 3 D की 3. डी की 3 है, सॉरी. मैंने चेक नहीं करना, तो अभी 1 2 3 ठीक है. ई की डिग्री भी कितनी है? 2 है. मतलब इन दिस केस देयर आर 3 वर्टिसेस whose degree is equals to 2 and 2 vertices with degree 3. Now let us come to the second graph. What is the degree of V1? 2. Ma'am, 2. Very good. What about V2? 3. Ma'am, 3. 3. V3 की डिग्री? Ma'am, 3. 3. Okay. V4 की? 2. 5. 2. And V5 की? 2. 2. तो देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास 2 वर्टिसेस एग्जिस्ट करती हैं जिनकी डिग्री 3 है. तो सेकंड ग्राफ में भी 2 वर्टिसेस है जिनकी डिग्री 3 है. 3 वर्टिसेस विद डिग्री 2, इसमें भी 3 वर्टिसेस है विद डिग्री 2. इट मींस G1 एंड G2 आर आइसोमॉर्फिक ग्राफ. इतना सा ही इसमें है. अब देखो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? देन आई विल गिव द एक्सप्लेनेशन इन रिटन आल्सो. एग्जाम्पल देख लो, व्यू करके क्लियर है. हमने बस यही चेक करना है कि सबसे पहले नंबर ऑफ वर्टिसेस दोनों में इक्वल बननी चाहिए, लेबलिंग उनकी अलग अलग होगी. और सेकंड हमने चेक करना है कि G1 और G2 ग्राफ में जितनी भी वर्टिसेस हैं उनकी जो डिग्री है वो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल है कि नहीं है. अगर इसमें 2 वर्टिसेस की डिग्री 3 है तो इसमें भी 2 की होनी चाहिए. अगर इसमें 3 वर्टिसेस की डिग्री 5 है तो इसमें 3 की 5 होनी चाहिए. तो उनकी जो बाकी रिप्रेजेंटेशन है दे मस्ट बी आइडेंटिकल. तो डायग्राम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ठीक है. तो Yes, अब ma'am. आप लिखिए. डायग्राम ड्रॉ कर लिया सबने? बेटा डायग्राम ड्रॉ है तो मैं एक्सप्लेनेशन लिखवा देती हूँ, अगर करना Yes, है तो प्लीज नोट डाउन द एक्सप्लेनेशन. सिंस डिग्री ऑफ ए, जस्ट सिंपल ऐसे लिख लो. सिंस बोथ द ग्राफ कंटेन, since both the graph contain vertices with same degree, hence graph G1 and G2 are isomorphic. क्योंकि ये आपके पास 2 नंबर में डेफिनेशन ही आएगी, तो इट्स सफिशिएंट टू एक्सप्लेन अप टू दिस. Since both the graph contain vertices with same degree, it means G1 and G2 are isomorphic graph. तो बेटा आइसोमॉर्फिक की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. एक्सप्लेनेशन तभी मैंने यहाँ पे प्रॉपर लिखवा दी है. अगर किसी की अभी भी कोई क्वेरी है यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट डेफिनेशन.
Beta, in the beginning of today's class, we have started with the definition of undirected complete graph. मैंने आते ही आपको undirected complete graph की definition प्रोवाइड की. तो आप बता सकते हो कि what is the distinction between directed complete graph and undirected complete graph? Just raise your hands. आपने अपनी हैंड रेस करने हैं. आई एम अगेन रिपीटिंग द क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड कंप्लीट ग्राफ. दोनों में क्या फर्क है? एक ही बच्चे का अभी तक हैंड रेस है. डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड कंप्लीट ग्राफ में क्या फर्क होता है? हाँ जी तमन्ना. रोल नंबर 286. मैम अनडायरेक्टेड ग्राफ में डायरेक्शंस नहीं गिवन होती और डायरेक्टेड ग्राफ में डायरेक्शंस गिवन होती है. ओके ठीक है. यस मैम यही है। मनप्रीत, डू यू वांट टू ऐड समथिंग और सेम आंसर है बेटा? मैम हर एज से दूसरी एज तक का पाथ डिफाइन होता है. हाँ मतलब डायरेक्शन की इंटरेक्शन भी गिवन होती है. हाँ आप ये सिंपल बोल सकते हो कि अगर हमारे पास दो एजेस है तो उनको हम कनेक्ट करते हैं एरो की हेल्प से. तो एरो का डायरेक्शन होता है. ठीक है. तो इन केस हमें पता होता है कि हमने कैसे मूव करना है. तो दोनों का आंसर बिल्कुल ठीक है. वेरी गुड बेटा. तो जी आप डायरेक्टेड की डेफिनेशन कर सकते हो. इन दिस केस जो एजेस हमारे पास होते हैं दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरो. बस इतना सा फर्क है. बाकी हमने कुछ चीज नहीं करना. K3 का ग्राफ ड्रॉ करना है, K4 का करना है, 5 का करना है, सेम ही आएगा. बस फर्क क्या है कि यहाँ पे एरो ड्रॉ करोगे, वहां पे एरोस नहीं होते. दिस इज द ओनली डिस्टिंक्शन बिटवीन बोथ ऑफ देम. ठीक है. अब हमारे पास नेक्स्ट है बेटा लेबल्ड ग्राफ. ग्राफ के बाद हमारे पास ट्रीज का टॉपिक है, वो भी थ्योरेटिकली है. इसमें बेटा हमारे पास 2-3 थ्योरम्स भी हैं ग्राफ में, लेकिन वो थ्योरम्स भी आपके पास क्या आएंगी? थ्योरेटिकली आएंगी. रिजल्ट्स के बेसिस के ऊपर थ्योरम है. तो वो भी मैं कोशिश करूंगी कि आज कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उसमें डेफिनेशन यूज होनी है. तो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन कंप्लीट द ऑल द डेफिनेशन. तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है लेबल्ड ग्राफ्स. लेबल्ड ग्राफ क्या होगा बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय अ लेबल्ड ग्राफ? मे बी मैम एजेस जिस की वेट और कॉस्ट वगैरह गिवन होगी मैम शायद. बेटा हाँ मतलब वेट हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब हम वेट की बात करते हैं ना, इन दैट केस अ पर्टिकुलर नंबर इज असाइंड टू एच. लेकिन लेबल्ड में हमारे पास जितनी भी एजेस होंगी उनकी लेबलिंग की होगी. उसको हम अल्फाबेट से भी डिनोट कर सकते हैं. लेकिन जब हम वेट की बात करते हैं ना, तो वहां पे नंबर असाइन होता है कि इस एज का वेट 4 है, इसका 10 है, इसका 15 है. तो आपने सिंपल बोलना है कि जब भी हमारे पास जो एजेस होते हैं उनकी हमने लेबलिंग की हो, उनको हमने डिनोट किया हो किसी ना किसी चीज के साथ, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? लेबल ग्राफ. ठीक है बेटा. क्योंकि फिर ये डिस्टिंक्शन आएगी ना. व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन, ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन करना था आपसे, चलो आपने मिक्स ही कर दिया. ओके. तो मैम बस एजेस का नाम दिया होता है, जैसे हम A to B बोल रहे थे, उन्होंने कुछ F बोला होगा. हाँ क्योंकि अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन लेबल ग्राफ एंड वेटेड ग्राफ. तो दोनों में क्या डिस्टिंक्शन होती है? चलो मैंने अभी तो फिलहाल उसको बोल ही दिया है. अगर हम यहीं पे नंबर असाइन कर देंगे तो वो वेटेड ग्राफ बन जाएगा. मतलब लेबलिंग तो की है हमने, लेबल तो है ही है, लेकिन वो वेटेड भी बन गया क्योंकि उसको वेट दे दिया हमने कि प्रॉपर इस एज का इतना वेट है. ठीक है. तो लेबल का क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ है, मान लो ये वाला ग्राफ ही है, तो यहाँ पे 3 वर्टिसेस हैं A B C. ए से लेके बी तक जो एज है उसको मैंने E1 मान लिया, इसको E2 मान लिया, इसको E3 मान लिया. अब जो एजेस है उनकी लेबलिंग हुई है यहाँ पे, मतलब एजेस को मैंने पर्टिकुलर नाम दे दिया हुआ है. तो इसी को हम बोलते हैं लेबल्ड ग्राफ. जबकि लास्ट टाइम जब मैंने क्वेश्चन करवाया था मैंने ऐसे लिखा था. मान लो ये मेरे पास एक ग्राफ है, मैंने सिंपल बोल दिया था कि ये मेरे पास एक ग्राफ है V1 V2 V3 V4. अब ये लेबल ग्राफ नहीं है. क्यों? क्योंकि इस केस में हमने एजेस की लेबलिंग नहीं की हुई. लेकिन जब हम एजेस को भी लेबल कर देते हैं तो दैट ग्राफ विल बिकम लेबल्ड ग्राफ. क्लियर है बेटा? यस और नो? डेफिनेशन लिखिए फिर. ठीक है, डेफिनेशन लिखो बेटा. A graph is called a labeled graph.
A graph is called a labeled graph if its edges are labeled. If its edges are labeled with some name. मैंने अभी बोला था कि नेम भी हो सकता है. जब आप नंबर असाइन करोगे तो लेबल तो रहेगा, साथ में वेटेड भी बन जाएगा. ठीक है. If the edges are labeled with some name or data. A graph is called labeled graph if its edges are labeled with some name or data. So we can write these labels. So a graph is called label graph if edges are labeled with some name or data. So we can write these labels in place of an ordered pair in the edge set. So we can write these labels in place of an ordered pair in the edge set. मतलब इसको डिनोट कैसे करना है वही उसने बताया है. सबसे पहले मैं एक ग्राफ लेती हूँ, फिर उस ग्राफ में कैसे हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में इसको लिखते हैं वो मैं उसकी रिप्रेजेंटेशन दे दूंगी. तो बेटा मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स कंसीडर करनी है. जैसे फर्स्ट है मेरे पास 1 Beta, first of all, I have taken a graph which consists of the edges E1, E2, E3, E4 and E5 and having 5 vertices 1, 2, 3, 4 and 5. तो क्या आपके पास ये लेबल ग्राफ है कि नहीं है? बेटा Yes, जी ma'am. लेबल ग्राफ बनेगा क्योंकि हर एक एज को हमने किसी ना किसी डाटा या अल्फाबेट के साथ डिनोट किया हुआ है. तो बेटा इसको Yes. ऑर्डर्ड पेयर में हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम जी में लिखेंगे वर्टेक्स सेट. वर्टेक्स सेट क्या है? 1 2 3 4 5 कॉमा व्हाट इज द एजेस सेट? E1 E2 E3 E4 एंड E5. तो ये हमारे पास बन गया कि G इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस. Beta, this is the example of label graph. अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, चलो ये तो आपने नोट कर लिया. What is the distinction between previous example and this one? दोनों में क्या फर्क है? बेटा अगर मैं यहाँ पे एरोस को डिनोट करती हूँ तो क्या डिस्टिंक्शन है? हाँ जी बेटा. मैम डायरेक्टेड हो जाएगा. डायरेक्टेड लेबल्ड ग्राफ. ठीक है. If the direction is not mentioned, then this will be example of undirected label graph. But if we mention the directions, then it will become the directed label graph. बस इतना सा फर्क आएगा दोनों में. ठीक है बेटा. ये डेफिनेशन सबको क्लियर है ना? सिंपल सी थी. लेबल्ड ग्राफ के बाद मेरे पास आएगा वेटेड ग्राफ. अब बताइए कि व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन वेटेड ग्राफ एंड लेबल्ड ग्राफ? दोनों में क्या डिफरेंस होता है? हम लेबल्ड ग्राफ में हम अल्फाबेट्स वगैरह भी ले सकते हैं बट वेटेड ग्राफ में ओनली न्यूमेरिक्स ही लेंगे. ओनली न्यूमेरिक्स आर अरेंज्ड. ओके, मतलब प्रॉपर्ली वेट्स गिवन होते हैं. ठीक है बेटा. तो प्लीज नोट डाउन द डेफिनेशन. अ ग्राफ G इज कॉल्ड अ वेटेड ग्राफ. A graph G is called weighted graph if each edge of graph G is assigned a positive number omega called the weight of edge. For example,
फॉर एग्जाम्पल बेटा सपोज वी हैव टेकन दिस ग्राफ, हमारे पास एक ये ग्राफ है विच हैज द वर्टिसेस K, L, M, N एंड P, और हर एक वर्टेक्स को, हर एक एज को मैंने वेट असाइन किया है। जैसे L to K को वेट असाइन किया 4, K से लेके M को 8, M to N 6 और N to P 7। इसका मतलब है कोई भी ग्राफ इन विच ईच एज सेट इज assigned a particular positive weight is said to be a weighted graph। तो जी आपके पास weighted graph बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसमें डायरेक्शन मेंशन करूंगी तो इट विल बिकम डायरेक्टेड weighted graph। तो आई थिंक ये बिल्कुल सिंपल है, सबको क्लियर ही होगा। कोई भी नंबर आप असाइन कर सकते हो, बट द कंडीशन इज कि नंबर मस्ट बी पॉजिटिव। बेटा क्लियर है ये भी आपको वेटेड ग्राफ? इसके बाद अगर आपको याद हो तो मैंने आई थिंक आपको मल्टी ग्राफ की लास्ट टाइम एग्जांपल क्लास में दी थी। जब हमने सिंपल ग्राफ किया था तो अलोंग विद दैट आई हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड द एग्जांपल ऑफ मल्टी ग्राफ। तो कितनों को पता है मल्टी ग्राफ क्या होता है? रोल नंबर 130 130 मैम 130 रोल नंबर है बेटा। 111 जस्ट वेट बेटा। अनु बेटा व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल ग्राफ? मल्टी ग्राफ क्या होता है? आप क्लासेस कहाँ पे बैठ के लगा रहे हो? इतना शोर है पीछे। सॉरी मैम। बेटा is there any student who is willing to respond कि what do you mean by multigraph? यस मैम। हाँ जी बेटा। मैम दो वर्टिसेस के बीच में मतलब वो एक से मतलब अगर दो वर्सेस के बीच में एक से ज्यादा एज एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीपल एजेस बोलते हैं, ठीक है। और साथ में इसमें सेल्फ लूप भी आपके पास आ सकती है। नेटवर्क का इशू है तो आई डोंट नो कि आप लोगों की वॉइस मुझे प्रॉपर्ली ऑडिबल नहीं है। तो ठीक है 111 ठीक है बेटा। तो सिंपली मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ जिनको नहीं आता था। तो बेटा मल्टी ग्राफ में हमने क्या किया था, कोई भी ग्राफ है जिसमें हमारे पास वर्टिस सेट को वी से डिनोट करोगे, एज सेट को ई से करोगे, उसको मल्टी ग्राफ कब बोलते हो? अगर हमारे पास उसमें मल्टीपल एजेस एग्जिस्ट करते हैं, मतलब दो वर्टिस में एक से ज्यादा एजेस एग्जिस्ट करेंगे और उसमें हमारे पास सेल्फ लूप भी एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने मल्टी ग्राफ की ऑलरेडी एग्जांपल भी लास्ट टाइम डिस्कस की थी। मल्टी ग्राफ इज अ ग्राफ इन विच देयर एग्जिस्ट मोर देन वन एज अमंग टू वर्टिसेस एंड आल्सो देयर एग्जिस्ट सेल्फ लूप। तो ये हमने मल्टी ग्राफ किया था लास्ट टाइम। क्लियर है कि इसको रिपीट करने की जरूरत है बेटा इसके डेफिनेशन मल्टी ग्राफ की? बेटा डेफिनेशन लिखनी है आप लोगों ने इसकी कि क्लियर है सबको? ठीक है जी ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास था ग्राफ कलरिंग। अब हमने 2-3 डेफिनेशन करनी है, उसके बाद देखते हैं। एक दो क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगी मैं सिंप्लीफाई करने के लिए। बेटा सबसे पहले हमारे पास आता है ग्राफ कलरिंग। ग्राफ कलरिंग के बारे में किसी को है आइडिया कि क्या मतलब होता है, जब हम इसमें क्या करते हैं, या कैसे कलर करते हैं ग्राफ को? इतना तो क्लियर है, ग्राफ कलरिंग मींस कि वी हैव टू कलर द वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ। सो व्हाट इज द कंडीशन, हाउ कैन वी कलर अ ग्राफ? तो बेटा प्लीज नोट डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। Suppose G is a graph. Suppose G is a graph with no multiple edges. Consider a graph G with no multiple edges
A vertex coloring of G is vertex coloring of G is an assignment of colors to the vertices of graph G such that adjacent vertices have different color. This is the condition. Such that the adjacent vertices have different colors. ग्राफ जी में हमने इस तरह से वर्टिसेस की कलरिंग करनी है कि जो दो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनकी कलरिंग हमेशा डिफरेंट होनी चाहिए. मतलब दो वर्टिसेस जो हैं एडजेसेंट वर्टिसेस, दे मस्ट नॉट बी ऑफ द सेम कलर. बेटा क्लियर है ग्राफ कलरिंग? ग्राफ कलरिंग का मतलब है कि वी हैव टू कलर the vertices of a graph G in such a way so that no two adjacent vertices have same color. दो adjacent vertices का कलर कभी भी सेम नहीं आना चाहिए. अब नेक्स्ट लिखिए. A coloring is said to be proper. A coloring is said to be proper if two adjacent vertices have different colors. A coloring is said to be proper if two adjacent vertices U and V has different colors. Otherwise, it is called improper coloring. Otherwise, it is said to be improper coloring. मैम एक बार रिपीट करना. Okay, beta. A coloring is said to be proper if two adjacent vertices U and V have different color. कलरिंग को प्रॉपर कब बोलोगे? इफ टू एडजेसेंट वर्टिसेस U और V के पास डिफरेंट कलर है. अदरवाइज इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर कलरिंग. अदरवाइज इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर कलरिंग. बेटा कलरिंग उसने बोला क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डायग्राम है, यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ जो सबको विजिबल है. मैंने एक ट्रायंगल ले लिया विच कंसिस्ट ऑफ 3 वर्टिसेस V1, V2, V3. V1, V2 एडजेसेंट है, V1, V3 एडजेसेंट है, V2, V3 एडजेसेंट है. अगर मैंने इसको कलर करना है तो हाउ मेनी कलर्स आर रिक्वायर्ड? कितने कलर चाहिए मुझे? 3. मान लो मैं इसको रेड करती हूँ, इसको मुझे कोई और करना पड़ेगा. मान लो मैंने ब्लू कर दिया, तभी तो ये दोनों डिफरेंट होंगे. अब इसको मैं रेड भी नहीं कर सकती. अगर इसको भी रेड कर दोगे तो दोनों का सेम कलर आ जाएगा. इसको अगर मैं ब्लू करती हूँ तब भी दोनों का सेम कलर आ जाएगा. तो इसको मैंने येलो कलर कर दिया. अब तीनों की तीनों वर्ड्स के पास अलग अलग कलर है. मतलब ये हमारे पास क्या बन जाएगा? दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर कलरिंग. प्रॉपर कलरिंग में क्या होता है कि कोई भी जो दो वर्ड्स हैं उनके पास सेम कलर नहीं होना चाहिए. V1 और V2 का कलर अलग है, V1 V3 का कलर अलग है, V2 V3 का कलर अलग है. सो दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ प्रॉपर कलरिंग. अब कितने नंबर ऑफ कलर्स हमें चाहिए किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? उसके लिए एक टर्म होती है द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर कलरिंग ऑफ अ ग्राफ. उसको क्या बोलोगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो पेपर में आ सकती है. क्रोमेटिक नंबर के बारे में सुना है सबने पहले? बेटा ये डेफिनेशन नोट कर लो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज क्रोमेटिक नंबर. क्रोमेटिक नंबर क्या होता है? द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स, जो मैंने अभी एग्जांपल करवाई है, द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स
required to produce a proper coloring, the minimum number of colors required to produce a proper coloring of a graph G is called chromatic number. किसी भी ग्राफ को कलर करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ कलर चाहिए सो दैट कोई भी दो वर्टिस का सेम कलर ना आए, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिक नंबर. बेटा डेफिनेशन ऑफ क्रोमेटिक नंबर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके, तो चलो अब आप मुझे बताइए, मान लो मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ. इसमें क्रोमेटिक नंबर कितना आएगा? जो हाउ मेनी कलर्स आर रिक्वायर्ड इन दिस केस, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस. मान लो मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, इट विल कंसिस्ट ए बी सी एंड डी, 4 वर्टिसेस हैं, तो कितने कलर चाहिए मुझे? मान लो मैं इसको रेड के साथ करती हूँ. हाउ मेनी कलर्स आर रिक्वायर्ड टू कलर अ रेक्टेंगल? I think 2. 2. Okay. What about the other students? What will be the chromatic number for this diagram? बस एक ही बच्चे को आता है? मैम 3. 3 क्यों चाहिए भी? 3 का हम क्या करेंगे? 2 मैम. तो मैंने बीच में कोई डायगोनल वगैरह कुछ नहीं ड्रॉ किया हुआ. नहीं मैम, एडजेसेंट वर्टिसेस का भी डिफरेंट होना चाहिए ना. 3 बताइए फिर कैसे आएंगी? मान लो मेरे पास ए बी सी और डी है, मतलब इसमें ना एक कंडीशन बनी है, पहले आप एक्सप्लेन करो फिर मैं करूंगी. तभी मैंने आपको दिया. इसको मान लो मैंने रेड किया, इसको मैं येलो कर लेती हूँ. इसको रेड कर सकते हैं फिर कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं. इसको फिर येलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? A, B, दो adjacent vertices है which are of different color. B and C are two adjacent vertices of different color. C and D and D and A. All the vertices have different colors. मतलब adjacent vertices have different color. तो इसका chromatic number 2 बनेगा कि 3 2 आ बनेगा? जाएगा, 2 आ जाएगा मैम. ज्योति, यस मैम, हो गया क्लियर. ठीक है. तो बेटा इस केस में हमने देखना है कि कोई भी दो एडजेसेंट वर्टिसेस जो हैं उनका जो कलर है वो डिफरेंट होना चाहिए, वो सेम नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए हमें जितने कलर चाहिए उसी को हम क्रोमेटिक नंबर बोलते हैं. ठीक है. अब आप लोग, मैं पोल दे रही हूँ, एक क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है विच इज बेस्ड ऑन दिस वन, इसी के ऊपर बेस्ड है. लिखिए बेटा क्वेश्चन एक, मैं लिखवाई देती हूँ आपको. द क्रोमेटिक नंबर ऑफ अ ग्राफ CN, the chromatic number of a graph CN where CN is a cycle, where CN is a cycle with n vertices, where CN is a cycle with n vertices, is either 2 or 3. Is either 2 or 3. मैम हाँ जी बेटा. रिपीट कीजिएगा. Beta, I am again going to repeat this statement. Statement है आपके पास. The chromatic number of a graph CN, where CN is the cycle with n vertices, is either 2 or 3. Is either 2 or 3. तो ये मैंने एक साइक्लिक पाथ बेटा ड्रॉ कर दिया हुआ है. CN मैम है 2 तो आएगा. मैंने बोला either 2 और 3 दोनों ही होंगे ना, तो you have to Yes, tell ma'am. the condition कि 2 कब होगा और 3 कब होगा. तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन लिसन द क्वेश्चन. उसने बोला था कि CN साइक्लिक है, तो दैट्स व्हाई आई हैव ड्रॉन अ साइक्लिक डायग्राम. अब n उसने बोला जहाँ 2 होगा जहाँ 3 होगा, तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज.
एन इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, क्योंकि उसने मुझे केवल इतना बताया है कि सी एन साइक्लिक है। क्लोज्ड फिगर हम इवन के साथ भी बना सकते हैं, ऑड के साथ भी। मुझे नहीं पता एन इवन है कि ऑड है, तो एक बार आप एन को इवन कंसीडर कर लो तो आपके पास क्रोमेटिक नंबर आ जाएगा, कितना होगा। एक बार आप एन को ऑड कंसीडर कर लो तो उस केस में देखो क्रोमेटिक नंबर कितना आएगा। टेक 5 minutes, simplify this question, and after this I will ask explanation from all of you one by one. अभी कोई आंसर एक्सप्लेन नहीं करेगा बेटा क्लास में, यू हैव टू जस्ट पुट योर सिंप्लीफिकेशन विद यू। आफ्टर 3 to 4 minutes I will put this question from all of you one by one, ठीक है। आप अपने पास रखिए इसका आंसर, फिर देखते हैं। क्रोमेटिक नंबर के ऊपर बेस्ड हमारे पास यही एक तो डेफिनेशन आएगी कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्राफ कलरिंग, प्रॉपर कलरिंग, इम्प्रॉपर। आफ्टर दैट देयर विल बी डेफिनेशन ऑफ क्रोमेटिक नंबर, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू सिंपलीफाई दिस क्वेश्चन। तो हो गया सबका सिंपलीफाई। रोल नंबर 125 अंकुश कुमार। रोल नंबर 125 अंकुश। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा बता सकते हो कि क्या इसकी एक्सप्लेनेशन होगी फॉर साइक्लिक के लिए, व्हेन विल बी द क्रोमेटिक नंबर 2 एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर 3 आल्सो। हाँ जी बेटा। अंकुश, किसका क्रोमेटिक नंबर 2 एग्जिस्ट करेगा कि 3? क्रोमेटिक नंबर मैंने क्वेश्चन दिया है ना आपको कि क्रोमेटिक नंबर कोई ग्राफ है हमारे पास सीएन जो साइक्लिक है, उसका उसने बोला जहाँ 2 होगा जहाँ 3 होगा, तो आप बताओ कि विच पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट, इसका क्रोमेटिक नंबर 2 आएगा कि 3 आएगा कि दोनों आएंगे। बेटा पता है कि मे आई पास दिस क्वेश्चन टू द अनदर स्टूडेंट? नो मैम। तो बेटा थोड़ा सा अटेंटिव रहिए बेटा क्लास में, अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया हुआ है इसको क्लास में, ठीक है। बी अटेंटिव इन द क्लास। ओके। रोल नंबर 126 अनमोल चावला। नो मैम, नहीं समझ लगी। नहीं लगी, आप ये भी बताइए कि देयर आर टोटल 52 अभी स्टूडेंट्स हैं, तो वही 4-5 बच्चे जो हैं दे आर सेंडिंग द रिस्पांस, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। हर एक डेफिनेशन के बाद मैं पूछ रही हूँ कि बेटा इसमें प्रॉब्लम है, तब आप लोग कोई क्वेरी पुट नहीं करते। मेरे पास चैट में भी वही 5-10 बच्चों का ही आ रहा है रिप्लाई। जब टीचर पूछता है कि बेटा इसमें कोई डाउट है, तो आप बोलो ना कि मैम हमें नहीं क्लियर हुआ कि क्रोमेटिक नंबर क्या होता है। और ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है जो हमने आज की है। क्रोमेटिक नंबर मतलब जितने नंबर हमें चाहिए किसी ग्राफ को कलर करने के लिए, ताकि कोई भी दो एडजेसेंट वर्टिसेस का सेम कलर नहीं होना चाहिए। इतना सा मैंने बताया। ऑनलाइन है तो बी अटेंटिव इन द क्लास, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू। रोल नंबर 130 अनूप। 130 रोल नंबर। यस मैम। हाँ जी बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमेटिक नंबर ऑफ दिस ग्राफ? इट विल बी 2 or 3?
मैम क्लियर नहीं हुआ अभी। लेव इट बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, कितनों को आता है? विलिंगली रेज योर हैंड्स। टाइम क्यों वेस्ट करना, जिन्होंने पढ़ना फिर वो पढ़ो, जिन्होंने नहीं पढ़ना इट्स योर चॉइस। अब 52 बच्चे हैं ना, 52 में से अभी हाथ खड़े होंगे केवल 4-5 बच्चों में। खुद ही देख लेना, आपको भी तो शो होती है ना चीजें। काइंडली हैव अ लुक एट दिस, ओनली 4 स्टूडेंट हैव रेज्ड देयर हैंड्स। वही 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर उन्हीं को 5 बच्चों को मैं लेक्चर दे दिया करती हूँ, क्या जरूरत है इतने बच्चों का ज्वाइन करवाने का। रोल नंबर 190 मोहम्मद अरिश। हाँ जी बेटा। यस मैम। बेटा क्या आएगा इसका क्रोमेटिक नंबर, 2 और 3? 2 आएगा सर। 2 आएगा, ठीक है Two. बेटा, ओके ठीक है। इंद्रजीत रोल नंबर 162, व्हाट विल बी इट्स क्रोमेटिक नंबर, 2 और 3? मनप्रीत। मैम अगर n इवन है तो 2 होगा, अगर n ओड है तो 3 होगा। वेरी गुड बेटा। अगर आपको याद हो तो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने रेक्टेंगल की एग्जांपल दी, और अभी एक मैंने क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने ट्रायंगल की एग्जांपल दी। क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे सॉल्व किया हुआ था बेटा। जब मैंने ट्रायंगल लिया, इन दैट केस हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या थी, ऑड थी, तो उस केस में कितने कलर्स की जरूरत पड़ी, 3। बट व्हेन वी हैव टेकन अ रेक्टेंगल, तो वहां पे मेरे पास कितनी वर्टिसेस थी, 4, मतलब इवन था। तो हाउ मेनी कलर्स आर रिक्वायर्ड देयर, ओनली 2। इसका मतलब है जब भी हमारे पास इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस आएंगी तो कलर रिक्वायर्ड विल बी इक्वल्स टू 2, बट इन केस ऑफ ऑड हमारे पास 3 एग्जिस्ट करेंगे। जैसे मान लो इसको मैं येलो करती हूँ, इसको पिंक, येलो पिंक, येलो पिंक, येलो पिंक। कोई भी 2 वर्टिसेस जो है वो सेम कलर की नहीं है, तो इसका मतलब है इसको कलर करने के लिए मुझे केवल 2 ही कलर्स चाहिए। तो इसका क्रोमेटिक नंबर 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है, इवन है। अगर मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर लूं, ये आपके पास इसको ऐसे कर लूं, 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है, A B C D E F 7 है यहाँ पे। अब इसको कलर करो, इसको मैंने किया रेड पिंक रेड पिंक रेड पिंक रेड। अब देखो ये दोनों एडजेसेंट वर्टिसेस का कलर सेम आ गया, इसका मतलब है इस केस में मैं 2 नहीं ले सकती। अब 3 के साथ ट्राई करोगे तो आपका कभी भी रिपीट नहीं होगा। तो आपने बस इतना सा याद रखना है बेटा कि व्हेन वी हैव टेकन ऑड नंबर ऑफ वर्टिसेस, देन इन दैट केस we require 3 colors for coloring, but in case of even number of vertices we required only 2 vertices। वहां पे मुझे केवल 2 ही चाहिए। तो अभी ये सबको क्लियर है? मैंने ये क्वेश्चन पहले ट्रायंगल और रेक्टेंगल के साथ ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। नाउ आई हैव अगेन रिप्लेस एक्सप्लेन द सेम क्वेश्चन विद सेप्टागन और ऑक्टागन। तो आप इसको देख लो, क्लियर है? एक में मैंने 7 वर्टिसेस ले ली हैं और एक में मैंने 8 ले ली हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ जी इंद्रजीत बेटा, क्लियर है ना? आपकी क्वेरी तो नहीं है कोई अभी? बेटा योर वॉइस इज नॉट कनेक्टेड विद अस ना, तो दैट्स व्हाई आई हैव पास्ड दिस क्वेश्चन टू अनदर स्टूडेंट। तो अभी भी आपकी वॉइस मुझे ऑडिबल नहीं है, बट योर माइक इज मैम ऑन। ऑडिबल है आप ऑडिबल है, हाँ। मैम। वो क्वेश्चन मुझे बेटा, लग हाँ। रहा था कि एक पर्टिकुलर डायग्राम गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आंसर No, no, बताना no, है। no, no, no. मैंने यहाँ पे इधर और लिखा था ना, तब मैंने बिगनिंग में बता दिया था कि यू कैन टेक एन इवन। एन के ऊपर कोई कंडीशन है कि वेदर इट्स यस इवन मैम। और ऑड ना, तो हमें दोनों पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ेंगी कि अगर इवन है तब क्या होगा, अगर ऑड है तब क्या होगा। सो दैट्स व्हाई आई हैव कोट एन एग्जांपल व्हिच कंसिस्ट ऑफ बोथ द इवन एज वेल एज द ऑड वर्टिसेस। तो इन दिस केस वी विल हैव 2 केसेस। तो दोनों को बेटा आपने एक्सप्लेन करना है। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम क्लियर है। हाँ, तो जब भी ये आर्टिकल करोगे, जैसे मैंने यही चाहे एग्जांपल लिख लेना, नहीं तो ट्रायंगल और वो ले लेना, हेक्सागन ले लो, चाहे ऑक्टागन ले लो, वो आपकी चॉइस है, आपने क्या लेना है ना। जितना डिफरेंट लोगे तो वो लगेगा कि हाँ अपना कुछ किया हुआ है बच्चे ने ना। तो इसमें आपने बस इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन के मैंने जो स्टेप्स बोले हैं वही आपने यहाँ पे लिखने हैं। तो जी आपके पास एक ही आर्टिकल है विच इज बेस्ड ऑन दी कलरिंग। तो कलरिंग में हमारे पास यही बनेगा। हाँ जी ज्योति। मैम यहाँ पे अगर हम 3 कलर्स लेते हैं इस ऑर्डर में, लेकिन उसी ऑर्डर में रिपीट करें, अगर आप 3 कलर ऑर्डर में लेते हो तो क्या होता है? जैसे रेड पिंक येलो लिया, फिर से हाँ रेड पिंक येलो, हाँ, फिर वैसे से लेने रेड की जरूरत ही नहीं है बेटा। वैसे लोगे तो फिर क्लैश आएगा ना आपके पास।
वो फिर आ रहा है ना। मैं बोल रही हूँ ना, वैसे लेने की जरूरत नहीं। देखो अच्छा हमने फिर मतलब जो हाँ मर्जी। हमने 2 ही लेना है कलर। देखो मैंने ले लिया पिंक रेड पिंक रेड पिंक रेड पिंक, बट यहाँ पे फिर लेने के बाद मुझे देखो ये लिया था ना रेड पिंक रेड पिंक रेड पिंक रेड, यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो छोड़ दो इसको, इसकी जगह पे कोई और कलर ले लो। मैंने येलो ले लिया। अब देखो टोटल 3 कलर है और कोई भी कलर रिपीट नहीं हो रहा। अगर आप ऐसे लोगे ना रेड येलो पिंक, फिर वो रेपिटेशन आ जाएगी कहीं ना कहीं। यस मैम। तो आपने वैसा नहीं करना, हम लेके शुरू में 2 ही चलेंगे क्योंकि हमारे पास 2 ही एडजेसेंट वर्ड्स होती है। तो जहाँ पे रेपिटेशन होगी वहाँ पे हम अपनी तरफ से कोई नया कलर जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है बेटा? ओके मैम। चलो ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल और आर्टिकल रिलेटेड टू द कलरिंग और क्रोमेटिक नंबर। इसमें यही आपके पास बस बनेगा बेटा। तो नेक्स्ट अभी हो सकता है हाँ 2 डेफिनेशन बस बेटा मैंने और करवाना है। हाँ जी बेटा। मैम पेपर में रियल कलर तो नहीं ना यूज करने? पेपर में पेपर में रियल कलर तो नहीं ना यूज करने? पेपर में आपकी चॉइस है बेटा, करोगे तो अच्छे नंबर। देखो प्रेजेंटेशन जो होती है इट इज ऑलवेज अपॉन यू। मान लो मैंने पेपर में या असाइनमेंट में क्वेश्चन डाल दिया क्रोमेटिक नंबर क्या होता है, अगर आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए पेन आपने एक रेड ले लिया, एक आपने ब्लैक ले लिया और एक आपने ब्लू ले लिया, अगर आप 3 कलर से 2 कलर से इसको डिस्टिंक्ट करते हो तो वो देखने में प्रेजेंटेशन भी तो अच्छी हो जाएगी ना। तो वो अगर आप यूज करोगे तो इट विल बी गुड, अगर नहीं करना तो तब भी आपकी चॉइस है। प्रेजेंटेशन हमेशा आपके ऊपर है। ठीक है? और बेटा आफ्टर दैट एक अनाउंसमेंट भी है, जो आपकी सेकंड असाइनमेंट है दैट इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द पोर्टल। वो मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी, आज कोशिश करूंगी। तो वो आप कब तक सबमिट करवाओगे? बाय नेक्स्ट फ्राइडे? Yes, ma'am. ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव अ लुक एट द असाइनमेंट, उसमें देख लूंगी क्वेश्चन सारे वही हैं जो आर्टिकल्स हैं क्लास में हमने कर लिए हैं। अगर कोई रह गया होगा तो नेक्स्ट ट्यूट में मैं उसको करवा दूंगी आपको। ठीक है? तो बाय नेक्स्ट फ्राइडे यू हैव टू सबमिट द असाइनमेंट। और एक बात बेटा और है, जिन बच्चों ने फर्स्ट असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई थी वो अब मत करवाइए, वो अब एक्सेप्ट नहीं होने। मैंने लास्ट डेडलाइन जो दी थी ना, मैंने उसको आई थिंक 10-12 बार वो ग्रुप में मैसेज डाला हुआ है। तो कल या परसों एक बच्चे की असाइनमेंट आई है तो वो अभी एक्सेप्टेबल नहीं होगी बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अपलोड द मार्क्स ऑन पोर्टल। तो इस चीज को माइंड में रखिए कि ये ना हो कि आप बोलो कि हमने तो किया था। हमारे पास तो वो एक नंबर है ना कि मेल में आपको 15 को आई थी, लेकिन लास्ट डेडलाइन मैंने मान लो 10 को दी थी, तो दैट असाइनमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो सेकंड असाइनमेंट जो है काइंडली सबमिट इट ऑन एप्रोप्रिएट टाइम। मैंने इस बार ग्रुप में बार बार मैसेज नहीं डालना, फ्राइडे है तो ज्यादातर एक आधा बार मैं मैसेज डालूंगी, उसके बाद मैं बार बार पुट नहीं करूंगी। तो प्लीज ऑन टाइम इसको सबमिट करवा दें, क्योंकि ऑलरेडी तो 1 वीक आपको मिल ही जाता है, उसके बाद भी आप लोग इतना लेट सबमिट करवाते हो। नेक्स्ट है बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम लास्ट टाइम फ्राइडे वाले नोट्स भी नहीं मिले अभी तक। बेटा आज ही Yes, मिल जाएंगे ma'am. सारे। वो पता है मैंने क्यों नहीं दिए थे, क्योंकि लास्ट नोट्स बने हुए हैं सारे के सारे, बट उसमें ना कुछ डेफिनेशन मैंने आज करवाई थी, कुछ उस दिन करवाई थी, तो वो मिक्सअप था ना टॉपिक, तो वो पहले दे देती तो आपके पास सारे नोट्स कंपाइल हो जाने थे पहले ही। तो दिस इज द रीजन कि मैंने नहीं दिए। तो आज फ्राइडे है, कल छुट्टी है ना, आज शाम तक ट्यूट के बाद अगर नहीं हो पाया तो कल मॉर्निंग में ही आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। ओके, आज ही मिल जाएंगे शाम तक, डोंट वरी। तो नेक्स्ट है बेटा आपके पास बिपर्टी ग्राफ। इसकी पहले डेफिनेशन नोट कीजिए। बिपर्टी ग्राफ ये इंपॉर्टेंट है, BIPARTITE। थोड़ा सा बोर्ड ऊपर चला गया ना, विजिबल नहीं होगा। बिपर्टी ग्राफ, मैं इसको नीचे लिख देती हूँ। नेक्स्ट डेफिनेशन है बिपर्टी ग्राफ एंड दिस डेफिनेशन इज अगेन इंपॉर्टेंट। इसमें हम यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। वैसे डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं बेटा हमारे पास? मैम इंटरसेक्शन 5। हाँ, बस Intersection वही 5. हमने यहाँ पे लगाना है। ठीक है, वेरी गुड। तो डेफिनेशन लिखिए, अ ग्राफ G इज इक्वल्स टू V कॉमा E, मतलब अ ग्राफ विद वर्टेक्स एट V एंड एज एट E is called a bipartite graph. A graph G is called a bipartite graph if its vertices V can be partitioned into two subsets V1 comma V2 such that each edge of graph G
connect a vertex of V1 to a vertex of V2. Each edge of graph G connect a vertex of set V1 to a vertex of set V2. In other words, no edge joining two vertices in V1, no edge joining two vertices in V1 or two vertices in V2 or two vertices in V2. किसी भी ग्राफ को बिपर्टी ग्राफ आप कब बोलोगे? अगर मैं जो उसका वर्टेक्स सेट है उसको दो सबसेट में पार्टीशन कर सकती हूँ। मान लो मेरे पास एक सेट है V जिसमें 1 2 3 4 5 6 6 वर्टिसेस पड़ी हैं, तो मैंने इसके दो सेट बनाने हैं। मान लो फर्स्ट सेट में रख लिया 1 2 3 और दूसरे में रख लिया 4 5 6। अब मैंने क्या करना है कि ईच एज ऑफ G, जो ग्राफ G के एजेस हैं, अब वो क्या करेंगे, जो V1 वर्टिसेस हैं, V1 सेट की वर्टिसेस हैं, उनको V2 के साथ आपस में कनेक्ट करेंगे। V1 के जो आपके पास वर्टिसेस हैं उनके बीच में आपस में कोई एज एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब आप V1 के वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। आप V1 के वर्टिसेस को किसके साथ कनेक्ट करोगे? V2 के साथ। और V2 की वर्टिसेस को किसके साथ कनेक्ट करोगे? V1 के साथ। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच एज ऑफ ग्राफ G इट कनेक्ट अ वर्टेक्स ऑफ V1 टू द वर्टेक्स ऑफ V2। मतलब जो आपने सबसेट बनाए हैं उनकी वर्टिसेस को आपने आपस में कनेक्ट करना है। इट इज डिनोटेड बाय KM, N। It is denoted by KM, N, where M and N are number of vertices. Where M and N, these are the number of vertices in a graph G. These are the vertices in a graph G. For example, आप एक एग्जांपल ले लीजिए बेटा इसकी। मान लो मेरे पास एक वर्टेक्स सेट है A, B, C and D। तो बिपर्टी ग्राफ में हम करते ही क्या है, सबसे पहले जो वर्टेक्स सेट होता है उसकी हम पार्टीशन करते हैं दो सबसेट के बीच में। तो इसका मतलब है इसमें से एक सबसेट बना लो A, B का और एक सबसेट बना लो C, D का। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो V1 और V2 आपने सबसेट बनाए हैं इनकी यूनियन हमेशा वर्टेक्स सेट के इक्वल होनी चाहिए और इन दोनों की इंटरसेक्शन लेके चलो तो 5 होनी चाहिए। मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। V1 और V2 दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट होने चाहिए। V1 में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट हैं? A, B। और V2 के बीच में कौन कौन से एलिमेंट है आपके पास? C, D। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इनको आपस में कनेक्ट नहीं करना। A को हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे? इसके वर्टिसेस को दूसरे के साथ कनेक्ट करो, B को इसके साथ कनेक्ट कर दो, B को D के साथ। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल बन जाएगी? बिपर्टी ग्राफ। देख लो, क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी एग्जांपल क्लियर है जी वाली? सबको देख लो एक बार। हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा जो बिपर्टी ग्राफ की हमने एग्जांपल की है, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हम एक बारी दोबारा क्लियर कर दो। ओके ठीक है बेटा।
बेटा यहाँ पे उसने क्या बोला है, विपर्टी ग्राफ में क्या होता है कि हमारे पास मान लो कोई ग्राफ जी दिया हुआ है, अब जी में एक वर्टेक्स सेट भी पड़ा होगा, एक एज सेट भी पड़ा होगा। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, जो वर्टेक्स सेट है उसके ऊपर कंडीशन है कि हमने उसको दो पार्ट्स में पार्टीशन कर लेना है। जैसे V1 और V2 मैंने दो सबसेट बना लिए, वो किस में से आएंगे, वर्टेक्स सेट में से आएंगे। तो मैंने यहाँ पे देखो क्या किया हुआ है, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक वर्टेक्स सेट है ABCD। फर्स्टली वी हैव टू पार्टीशन दिस वर्टेक्स सेट इनटू टू सबसेट्स। तो मैंने V1 और V2 दो सबसेट्स ले लिए। What is the condition? The union of these two subset must be equals to the vertex set and their intersection must be equals to 5। मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट्स होने चाहिए। तो मैंने ये कंडीशन देख लीजिए, क्लियर है। तो इसका मतलब है ये एक पार्टीशन फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो व्हेन वी हैव डिस्कस्ड द डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ सेट्स इन सेट्स टॉपिक, तो उसमें क्या कंडीशन थी कि आप इस सेट के जितने भी सबसेट बनाते हो उन सबकी यूनियन सेट के इक्वल होनी चाहिए, और जितने भी सबसेट्स बनते हैं उनकी आपस में इंटरसेक्शन क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो जब ये दोनों Yes, ma'am. कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब है V1, V2 फॉर्म कर रहा है एक पार्टीशन। अगर ये पार्टीशन फॉर्म करेगा तो इस तरह के हम ग्राफ को क्या बोलेंगे, विपर्टी ग्राफ बोलेंगे। अब मैंने इसकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप लोगों को दे दी हुई है। A और B, these are the vertices of first set. C and D, these are the vertices of second set. अब उसने बोला है कि हमने क्या करना है, V1 की वर्टिसेस को V2 के साथ कनेक्ट करना है। V1 की वर्टेक्स को V1 के साथ नहीं कनेक्ट कर सकते। मैंने लिखवाया था ना कि in this case there will be considered only those edge which will connect the vertices of set V1 to the vertex of set V2। बेटा V1 की वर्टेक्स है A, इसको मैंने C के साथ कनेक्ट कर दिया। B थी, B को मैंने D के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरे पास एक विपर्टी ग्राफ की एग्जांपल बन जाएगी। अब देख लो, क्लियर है। इसकी एक और एग्जांपल नहीं तो दे देती हूँ आपको। Clear है। ठीक है। अब जे बेटा जरूरी नहीं है कि मैंने V1 और V2 में जो एलिमेंट लिए हैं जे हमने हमेशा इक्वली लेने हैं। मैंने तो यहाँ पे 4 एलिमेंट थे, 2 इसमें रखे, 2 इसमें रखे। मतलब नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स आएंगे इन सबसेट इट विल नॉट ऑलवेज बी इक्वल। जेने के हमने 2-2 ही लेके चलने हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर जो है वो उनमें असाइन करवा सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं कोट कर देती हूँ। मान लो हमारे पास एक सेट है V, जिसमें मेरे पास है A, B, X, Y और Z। टोटल इसमें हमारे पास कितनी वर्टिसेस एग्जिस्ट कर रही हैं, 5। अब सबसे पहले इससे हमने वर्टेक्स सेट कंस्ट्रक्ट करना है। तो V1 में मैंने एलिमेंट रखा A, B, V2 में मैंने एलिमेंट रख लिया X, Y, Z। क्या V1 और V2 की यूनियन लो तो V बनता है, V1 और V2 की इंटरसेक्शन लो तो 5 बनता है। इसका मतलब है V1 और V2 दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक पार्टीशन फॉर्म कर रहे हैं। तो दिस ग्राफ इज आल्सो अ विपर्टी ग्राफ। अगर आपने इसकी एग्जांपल लेनी है, मतलब इसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करना है, तो क्या आएगा, A, B, these are the vertices of first set, X, Y and Z. These are the vertices of the second set. बेटा कनेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी पावर कट की प्रॉब्लम आ गई थी। तो इसको देखो, क्लियर है। The first set consists of only 2 vertices A and B and second set consists of 3 vertices X, Y and Z. हमने क्या करना है, फर्स्ट सेट की जो वर्टेक्स है उनको दूसरे सेट की वर्टेक्स के साथ कनेक्ट करना था। तो मैंने A को X के साथ कनेक्ट कर दिया, Y के साथ भी कर दिया। सिमिलरली B को Y के साथ कर दिया, B को Z के साथ भी कर दिया। तो ये हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विपर्टी ग्राफ। अब देख लो, क्लियर है सबको, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। बेटा एक बार इसको देख लेना, अगर किसी भी कोई क्वेरी है तो पूछ लो, अभी आपके पास है लास्ट 4 मिनट्स। एंड ड्यूरिंग दिस अगेन देयर इज एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कि आपका 2 बजे आज ट्यूट मैंने फिर कंडक्ट करवाना है। योर ट्यूट विल बी कंडक्टेड एट 2 o'clock टुडे। बेटा क्लियर है, मे आई एंड द क्लास नाउ? कोई क्वेरी तो नहीं है किसी की यहाँ पे? क्लियर है मैम, क्लियर है। ठीक है, तो बेटा असाइनमेंट आई विल ट्राई कि आज उसको आपके ग्रुप में डाल दूंगी। नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल ऑफ यू बाय टुडे इवनिंग, वो भी आपको मिल जाएंगे।
अगर आज ना हो पाए तो कल सैटरडे में सारे नोट्स आपको कंपाइल करके प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। टुमारो विल बी द लास्ट डेडलाइन फॉर द कंप्लीशन ऑफ दीस नोट्स, क्योंकि आज मेरा वाइवा भी है तो इट मे भी कुछ डिले हो भी सकता है, तो वो आप थोड़ा सा देख लेना। तो ठीक है, बाकी मैम बेटा नेक्स्ट असाइनमेंट टाइम है पोर्टल पे। असाइनमेंट मैंने ऑलरेडी पोर्टल पे डाली हुई है, फिर भी कई बार बच्चों की फिर हो जाती है ना कि मैम हमें हमारा पोर्टल नहीं खुल रहा था, हमने इसलिए नहीं किया, तो उस चीज को डिडक्ट करने के लिए मैं एक बार उसको फिर से ग्रुप में भी मैसेज डाल दूंगी उसका, ठीक है। अदरवाइज इट इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द यस पोर्टल। तो आप एक बार एक काम करना, उसको डाउनलोड करके देख लेना कि जितना हमने किया है उससे एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता देना, वो मैं ट्राई करूंगी कि आज ट्यूट में सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। मैम ये क्वेश्चन नहीं किया हुआ। यूलर्स थ्योरम। बस एक मैम ही व्हाट बात नहीं, वो इज नेक्स्ट में कर सोर्स लेंगे एंड सिंक? बेटा। सोर्स एंड सिंक की डेफिनेशन हमने फर्स्ट में की थी, तमन्ना क्या हो गया बेटा? करवाई Source हुई and है। sink, जो इन डिग्री आउट डिग्री से रिलेटेड था, यस मैम। ठीक है। यस मैम, यस मैम। यूलर्स थ्योरम ओनली नहीं वन करवाई। टॉपिक दैट इज यूलर्स थ्योरम, वो नहीं हुई तो कोई बात नहीं, दैट थ्योरम विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट ट्यूट, उसमें हम कर लेंगे इसको, ठीक है बेटा। एनी फर्दर Yes, ma'am. क्वेरी फ्रॉम योर साइड? नो मैम। ठीक है बेटा, No, ओके। ma'am. थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू बेटा। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.